علیکم۔ السلام علیکم حضرت۔ السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اور آپ کیسے ہیں؟ اللہ کرم ہے، کرم اللہ کا۔ کیا خبر ہے؟ ہاں بس اللہ کا احسان ہے، ویڈیو سب سن رہا تھا، آپ کی آڈیوز اچھا، کون کون سی سنی؟ سبھی سنا، آج جو اپلوڈ کیے وہ بھی سنا۔ اچھا، ہاں وہ پوچھ رہا تھا دیوبندی سے نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، وہی لگا کے ہی میں سو گیا تھا۔ اچھا، سیٹرڈے تھا تو گیا نہیں، میں ہاف ڈے تھا۔ کتنا دماغوں کو ان لوگوں نے ٹائٹ کر دیا ہے۔ ہاں واقعی، کیا خباثت پڑی ہے ان لوگوں کے ذہن میں۔ وہ اسی کی کھا بھی رہے ہیں پیسے، یہی اسی کی تو کھانا ہے۔ وہی خباثت کی پیسہ کھاتے ہیں۔ وہ جب حرام خور جو وہ سور کال کیا تھا، وہ کیا نام ہے اس کا بھی میں سنا۔ وہ بعد میں شرمندہ تھا بہت زیادہ کہ میری گالی والی ویڈیو آڈیو کیوں بتایا، تو آپ کے بارے میں بول رہا تھا نا وہ۔ اچھا، ذکر اللہ، ذکر اللہ نام ہے اس کا۔ ہاں ذکر اللہ بہت خبیث انسان ہے وہ۔ ہے نا۔ پتہ نہیں اس کا ماں باپ صحیح جائز اولاد ہے کہ نہیں، اس پہ بھی ڈاؤٹ ہے مجھے۔ کیا کیا جائے یہ لوگ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے جائے۔ یہ پوائنٹ بہت اسٹرانگ تھا آپ کا، اہل کتاب کا جب کھانا حلال ہے تو قرآن کسی اور ہاں قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ اجازت دے رہا ہے اور یہ منع کر رہا ہے۔ کل ہی میں سنا ہوں یہ بیان۔ اچھا، یہ تو اہل کتاب کا ذبیحہ اللہ جائز قرار دے رہا ہے، ربا، یہ تو اہل قرآن ہے دیوبند والے صاحب۔ ہاں، اہل قرآن اہل حدیث دونوں ہیں، دونوں ہی ہیں، اہل قرآن بھی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو اہل حدیث ہو، وہ لوگ تو قرآن یا حدیث کا انکار تو نہیں کرتے نا۔ تو ان لوگوں کے اعتبار سے اہل کتاب سے بہتر ہیں۔ تب بھی ان لوگوں کے پتہ نہیں ذہن میں کیا لیٹرنگ بھرا ہوا ہے، کیا ہے خدا جانے۔ وہ اصلی میں انہوں نے جو لکھ دیا ہے نا، حضرت فاضل صاحب نے، بریلوی نے، مولانا احمد رضا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا۔ شریعت پہ عمل کرنا ہی چاہیے، صحیح بات ہے۔ نہیں، اب ذرا سمجھنا بات کو، انہوں نے لکھا ہے شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا۔ حتی الامکان مطلب پوری کوشش کرنا۔ ہاں، کوشش کرنا، حتی الامکان کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہے کوشش کرنا، جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا۔ اور پھر لکھا میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ ہر تو کیا مولانا احمد رضا نے نیا دین بنایا ہے کیا؟ ہاں، مطلب شریعت کو الگ کر دیا اور یہ اپنے دین کو الگ کر دیا، دونوں کے بارے میں الگ الگ نصیحت کی ہے نا انہوں نے۔ شریعت کے بارے میں کہا کہ حتی الامکان عمل کرنا، پھر کہا میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر فرض سے ہم فرض نیا دین قائم کیا ہے وہ۔ اب وہی تو نہیں تو ہے بات۔ اب 4 امام کو فالو کرتے، یہ کیا 5واں امام بول کے ہیں؟ ہاں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت پر ہی عمل کرنا، اسی پر میں نے عمل کیا ہے، اور جو شریعت کو اولیاء اللہ نے بیان کیا ہے وہی اسی پر عمل کرنا۔ اور یہ کیا ان لوگوں، وہ جو کون مولانا ہے ایک جو بولا کہ کربلا والے بھی بریلی تھے، وہ تو گلزار میاں صاحب تھے، مسولی والے۔ حالانکہ یہ تو بہت گندی غلط بات بولے وہ تو یہ سب نبھا رہا ہے نا جو اب وہ سب اب ان کا ایک بہانہ ہوگا کہ بھائی جو بریلوی ہے وہی حسینیت ہے، وہی حسینیت ہے جو بریلوی ہے۔ نہیں تو ابھی کوئی بھی شہر والا اٹھے گا بولے گا اب یہ ہو گیا ہے، ان میں یہ ہو گیا ہے، اب بریلوی حضرات میں بتاؤں یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی 10 لڑکیوں کے ساتھ بھی زنا کر کے آیا ہو یا ہر وہ زانی تھا نا ایک کون مولانا، کل تو آپ ذکر کر رہے تھے، غلام جیلانی، اس کو اسٹیج پہ چپل مار کے بھگانا چاہیے ایسے حرام خور لوگ۔ وہ ہیرو بن گیا پھر ان میں آگے ہیرو بن چکا۔ وہ کرناٹک کی جیل میں تھا نا، کون سی جیل میں تھا؟ کرناٹک کی جیل میں، کرناٹک ابھی بھی وہ اس کا وہ پڑا ہوا ہے، جیل کا وہ فوٹو ویڈیو ہے کہ ابھی بھی ہے۔ اس کو تو سزائے عمر قید ہونی چاہیے تھی اس کو۔ اور وہ تو پیسہ دے دا کے چھوٹ کے آ گیا ہوا، کروڑوں کے معلوم کتنے دے کے آیا اللہ جانے۔ اسٹیج پہ اس حرام خور کو بلاتا کون ہے یہ زانی کو؟ یہی بریلوی لوگ بلا، کیا معلوم کتنے بار زنا کیا۔ ایک بار تھوڑی لڑکی بہت خوبصورت تھی، ہم نے دیکھی ہے، لیکن بہت 20 سال کی لڑکی تھی اور بہت خوبصورت ہیروئن لڑکی تھی صاحب، اس کا بتایا تھا، اس لڑکی کا فوٹو بتایا تھا، ویڈیو کو، اس قدر خوبصورت تھی کہ بالکل ہیروئن تھی۔ اس کی شادی بہت بڑے کلیکٹر ڈاکٹروں کے اندر ہو جاتی، آرام سے ہو جاتی بالکل، لیکن اس کے ساتھ ایک بار زنا تھوڑی کیا ہے، تو پکڑایا ہے
पकड़ा है ना, जब मालूम हुआ है। तो इसको चप्पल से मारना चाहिए था उसी वक्त, इसको तो देखा जाए तो सजा होनी चाहिए। जब कुरान में अज़ानी तो वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिदिन मिन आवाम कैसी जाहिल, क्या नशा घोल से कौन सा नशा फूक के आवाम को पिला दिया है ये लोग। मतलब ये हो गया है कि कोई ज़िना करके आए, चोरी डकैती कुछ भी करके आए, आला हज़रत को मान लेता हो तो निभा लो, उसको निभा लो। नहीं, आला हज़रत को ठीक है मानिए, एक साइड कीजिए, एक आम आवाम में जो एक अकल होती है वो तो होनी चाहिए कि भाई गैर मुस्लिम में भी अगर कोई ऐसा इंसान होगा जो जानी होगा, उसको लोग क्या इज्जत देंगे? वो देखो ना, नहीं का वो आशाराम के मामले में सब गैर मुस्लिम कितने लोग वो हो गए थे। हाँ, सब अवेयर हो गया कि नहीं ये बाबा नहीं है। वो पुलिस वाले भी खिलाफ। हैरत की बात यह है कि ये लोग बोलते हैं मिंबर रसूल है, और ये मुसलमान हो के एक जानी को हीरो बना रहे हैं, गुलाम जिलानी अजहरी को हीरो बना रहे हैं। जानी को बुलाकर पता नहीं क्या है, जब उससे ये गुनाह साबित हुआ तो उसको तो स्टेज के करीब भी नहीं आने देना चाहिए उसको। और जबकि वो हिंदुस्तान भर में मशहूर हो गई वो बात कि ये पुलिस कस्टडी में है। पोशीदा होता कि जिना पोशीदा है उसका, उसको बाज़ाब्ता सजा हुई है इस बात की, मतलब जानी है वो गुनाहगार है। अच्छा, झूठे केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता साहब? नहीं, साबित हुआ होगा, झूठा केस में जेल है, वो तो साबित हुआ है, पक्की तरह से साबित हुआ है साहब। और फिर भी लोग पहले भी वो जलसे में खूब जा रहा है क्या? अच्छा, आप उसका चेहरा देखना, जरा भी नूर नहीं उसके चेहरे पे। पता नहीं है, इन लोग को तो हम कभी देखे नहीं है। आप ही का बयान मैं सुना तो मैं नाम सुना उसका। अपन जैसे मान ले हजरत फाजिल बरेलवी ने 1,70,000 जैसे किताबें लिख ली, मान लियो, तस्लीम कर लो। 1,70,000 जैसे कि उन्होंने 4 साल की उम्र में 4 साल की उम्र में बुखारी शरीफ की अगर शरह लिख दी थी, और 5 साल में मुस्लिम शरीफ की शरह लिख दी, तो क्या इसका मतलब हुआ कि उन्हीं को ही मानेंगे हम? कौन है ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इंसान की उम्र अगर 100 साल भी है तब भी एक रोज एक किताब लिखेगा तो नहीं हो सकता है। वो भी फर्ज कर लो कि 1,70,000 किताबें उन्होंने लिख दी, तो क्या इसका मतलब है कि उन्हीं को माने? नहीं, उतनी किताब लिख भी नहीं सकते है ना। हाँ, भी नहीं तो जैसे कि गुलाम जिलानी बता रहा था ना कि 9 साल की उम्र में शरह मुसल्लिम सबूत की शरह लिख दी। हाँ, 9 साल की उम्र में मुसल्लिम सबूत की शरह कहाँ से लिख देंगे? पता नहीं, ये किताब का नाम तो सुना नहीं, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। ये तो जो चाहते हैं कि देते हैं ये तो समझ में नहीं आता। ये तो गुलाम जिलानी तो ये कह रहा था कि आला हज़रत 7 घंटे में कुरान के हाफिज हो गए थे, 7 घंटे में। अब आप ये बताओ कि जब कुरान आप अरब वालों का कुरान सुनोगे तो वो आधे घंटे में तो एक पारा पढ़ पाते हैं तरतीब के साथ। मौलाना अहमद रजा ने क्या वहदानियत पे कोई भी किताब नहीं लिखी है क्या? नहीं, वहदानियत से तो वो उन्होंने करीब भी नहीं किया वहदानियत के। अच्छा, इन लोगों में तौहीद की कमी दिखती है, मतलब तौहीद से तो दूर करते हैं, तौहीद के तो करीब नहीं आने देते लोग। और इन लोगों में जो है, लोगों में सुनने की सलाहियत नहीं है, बरेलवी आवाम में सुनने की कुरान में वइलाहुकुम इलाहु वाहिद तौहीद पर कितनी आयतें हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। और ये भी जो अभी आज गांव मोहल्ले का कोई भी आम आदमी मरता है, थोड़ा नमाजी रहा तो उसकी मजार बना देते हैं, फिर उसकी जो है पूरी इबादत शुरू कर देते हैं ये लोग। हाँ, अभी लगभग हिंदुस्तान में कमबेश धंधा टाइप से हो गया है ये। मालूम है कमबेश कितने उर्स हो रहे हैं? खाली है तो खाली रामपुर में आप जाओ, रामपुर में कम से कम 200 जगह उर्स होते हैं एक जिले में, जबकि रामपुर बड़ा जिला नहीं है। 200 उर्स तो एक जिले में हो रहे हैं रामपुर में, फिर यूपी में कितने होंगे साहब, अंदाजा लगाओ। देखो मैं बता रहा हूँ रामपुर में आप कहाँ हो, यानी 10-20 जगह तो बता ही देता हूँ। बिलासपुर में एक जगह नहीं कई जगह उर्स होता है, बिलासपुर में, स्वार में, और फिर स्वार के पास में वो क्या कहते हैं ये बेरंग शाह साहब का जो मजार है खोद में, लगभग मेरे छोटी सी जगह में बता रहा हूँ, जहाँ मैं आता जाता हूँ 50 उर्स तो जहाँ मैं आता हूँ ना वहीं हो जाते हैं कम बेश। ओहो, तो ये तो अब एक जिले में जब 200 उर्स होंगे तो पूरे यूपी में कितने उर्स होंगे साहब? तो जिक्रुल्लाह माफी भी मांगा आपसे, वो हरामखोर गाली गलौज करने वाला मौलाना। माफी मांगेंगे, इनका तो बस धंधा यही है कि आला हजरत को मान लो तो आपको मुसलमान मान लेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। कुछ दिन बाद देखना, जैसे ये कहते हैं ना
कि हम मसलक इमाम आजम को मानते हैं, तो ये कहते हैं नहीं मसलक आला हजरत, ये तो देवबंदी भी कहते हैं मसलक इमाम आजम। तो अब इनमें कुछ दिन बाद ये होने वाला है कि अब मसलक आला हजरत मत कहो, मसलक अजहरी मियाँ कहो, मौक़िफ़ अजहरी मियाँ कहो, कि मसलक आला तो और भी सुन्नी कहते हैं। अच्छा, वो अभी इन लोगों में भी आपस में देखना नहीं, वो कहेंगे मसलक आला तो पीलीभीत वाले भी कहते हैं, जो ढोल बाजे से ताज़िए को जायज करार दे रहे हैं, मसलक आला तो वो भी कह रहे हैं, फलाने भी कह रहे हैं, इसलिए अब मसलक अजहरी मियाँ कहो, मौक़िफ़ अजहरी मियाँ कहो। कछौछा का क्या है, उन लोग का अलग है? अब वो भी यही मसलक आला, उनमें आधे मानते आधे नहीं मानते, कुछ मान रहे हैं कुछ नहीं मान रहे। इन लोग को अजमेर शरीफ से क्या चीर है? इन लोगों को अजमेर शरीफ से क्या दुश्मनी रहती है? वो लोग ये नारा लगाने नहीं देते वहाँ पर, ये नारा लगाते तो मार लगा देते हैं, वो लोग मारने पे तैयार हो जाते हैं फौरन। वहाँ के मुजाविर वो खुद्दाम हजरात जो हैं, हाँ, इतने पावरफुल हैं, अंदाजा लगाओ, इतना पावरफुल हैं कि हाँ, 5000 खादिम हैं और 5 करोड़ इन लोगों पे भारी पड़ते हैं बरेलवी हजरात। तो ये लोग की वहाँ नहीं चलती है। अब अंदाजा लगाओ एक खादिम कितने पे भारी पड़ रहा है, यानी 1 लाख के लगभग। हाँ, अंदाजन 1 लाख, ये थोड़ा कम मान लो। हाँ, यानी जितने भी ये जाते हैं ना, तो वहाँ अपनी बपौती चाहते हैं ये लोग। मान लो 5 लाख ये जाते हैं, तो वो 5000 सब खादिम तो इकट्ठे नहीं होते, उनमें से कुछ सब तो नहीं होते, थोड़े बहुत जमा होके वही इन पे भारी पड़ जाते। तो कितना पावर है साहब उनमें, अंदाजा लगाओ। हज़रत ख्वाजा गौस के सदक़े में अल्लाह ने उनको कितना ताकतवर बनाया है। हाँ, वो पिटते नहीं है, मार नहीं खाते, मारते हैं वो इनको। अब अंदाजा लगाओ, इतनी भीड़ इनकी होती है, उसमें भी वो चंद मुजाविर इनको मार लेते हैं। वहाँ नहीं चल पाती इन लोगों की। अगर एक आध मुजाविर को मार लेंगे ना, हाथ पैर अगर तोड़ दिए मिसाल के तौर पे, तो फिर वो इनको बख्शेंगे नहीं। अच्छा, अभी एक मुनाजरा में तोड़ के गिरा देंगे, फिर तो गुस्से में इतने आ जाएंगे कि इनकी फिर जाने नहीं देंगे इन लोगों को, समझ लो। ओह, अच्छा, बहुत पावरफुल मुजाविर है। हाँ, अल्लाह पावरफुल बनाया। अल्लाह ने ख्वाजा गौस के सदक़े में उनको पावर अता फरमाया, बहुत पावर है। तो ये लोग तो बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाते होंगे, वहाँ अपना जमा ले अपना। वो तो जरा सा भी सोचते हैं कुछ करने की तो एकदम मुजाविर आ जाता है कोई भी। जैसे उन लोगों का कहना है कि यहाँ सब आ सकते हैं, सबके लिए ये जगह है। तो देवबंदी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सब तरह के लोग, यहूदी भी जाते हैं। यहूदी भी गए हुए थे वहाँ के, जो क्या नाम है, तो इजराइल के एम्बेसडर है ना, एम्बेसडर होते हैं ना हर कंट्री के, एक दूसरी कंट्री में। तो इजराइल के एम्बेसडर भी गए थे वहाँ। अच्छा, वो अजमेर के मुजाविर जो जाएंगे ना, जैसे इंदौर जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, रतलाम जाएंगे, हाँ, तो वो जलसे में ये नहीं कि पूरे जलसे में ख्वाजा गौस की चर्चा करें, सहाबा का भी, औरों का भी चर्चा करेंगे, और बुजुर्गों का सबका कर लेंगे। ये तो जहाँ जाएंगे बस आला हज़रत आला हज़रत। हाँ, इन लोगों की मजलिस में मैं सुनता हूँ आमतौर पे सहाबा और वाक़यात ये सब का जिक्र बहुत कम होता है। कभी पूरे हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा गौस के नाम का उर्स नहीं हुआ इस तरह से। होता है लेकिन गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस ये वो, लेकिन उस तरह से नहीं होता है जितना इस तरह, जितना ये हर घर हर गांव में, हर कस्बे में करना चाह रहे थे। और कभी जश्न अबू बकर सिद्दीक ऐसे नहीं मनाते जैसे जश्न फाजिल बरेलवी मनाते, न जश्न हजरत उमर मनाते, न जश्न हजरत खालिद बिन वलीद मनाते। ये सब तो मैं देवबंदी हजरात में भी ये चीज नहीं देखा हूँ मैं। वो उन लोगों में भी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस ये सब रहती है। जश्न अबू बकर, जश्न उमर, जश्न अमीर मुआविया, जश्न ये सब रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, इन लोगों का बहुत कम होता है। किसी भी जो नाम निहाद के आजकल जो फिरके हैं, वो किसी में भी मैं नहीं देखता हूँ। ना अहले हदीस में कमी तो है, सब में ही कमी है साहब, न देवबंदी में, न बरेलवी में। तो उन लोगों का एक अपना पर्टिकुलर 4-5 लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए कभी भी देवबंद में आज तक जश्न इमाम हुसैन के नाम की शहादत के जलसे नहीं हुए आमतौर से देवबंद नज़वा में। कभी नहीं, एकदम ठीक बोल रहे हैं। और जश्न इमाम ज़ैनुलआबिदीन तो हुए ही नहीं, वो तो मनाएंगे नहीं। वो तो शायद कमाल हुसैन मनाने को तो ये समझते होंगे हम शिया थोड़ी होंगे कोई। हालांकि तो फिर खुतबे में क्यों नाम पढ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, क्यों नाम पढ़ा? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनका तो बहुत बहुत बड़ा मकाम है उनका। लेकिन अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर मैं 2 साल उनकी खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद। इमाम आजम उनके एक तरह से शागिर्द थे। तो
उनका तस्करा जो है हमारी मजलिस में, लेकिन वो हमारे देवबंद में क्या बरेली वाले भी जश्न इमाम बाकर आज तक नहीं किया बरेली में, न कानपुर में, न लखनऊ में, न उन्नाव में, न इंदौर में, न रतलाम में, न उज्जैन में, कहीं भी नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल देवबंदी में तो ये सब जलसा बहुत कम होता है। अगर कभी कोटा में करा भी लेंगे ना जश्न इमाम बाकर, कोई करा भी लेगा, जैसे अब्बासी हजरात करा लें या अंसारी, तो वहाँ के इमाम शरीक नहीं होंगे, दिलचस्पी नहीं लेंगे। हो सकता है मौलवी इदरीस हाजी डेरा वाला वो पोस्टर न फटवा दे कि जश्न इमाम बाकर के पोस्टर फटवा दो, नहीं तो शीयत फैल जाएगी कोटा में। इदरीस का भी बहुत नाम सुनता हूँ, उसका क्या काम, उसका क्या खेल है इदरीस का? वो सुलह कुल्ली है, रामपुर का रहने वाला है। कोटा में बरेलवियों को देखकर वो पक्का बरेलवी बन गया कि पैसा कमा लूं। अच्छा, हज करे आया मदरसे में रहकर हज करे आया, बताओ आप। वो घर बना लिया उसने, एक अनंतपुरा में बहुत बड़ा घर बना लिया, अनंतपुरा में 1 करोड़ से कम का घर उसका कम है। खूब बेवकूफ बनाया है आवाम को। मतलब कोई तनख्वाह थोड़ी है, इनकी तनख्वाह थोड़ी है, पूरा मदरसा है। लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ, बरेलवी आवाम जो है, बरेलवी मौलाना लोग जो है, पैसा अच्छा टानते हैं आवाम से, पैसा अच्छा मिलता है। सही कह रहा, बिल्कुल मिलता, आवाम देती भी है। और दूसरे आप कोटा में कभी मालूम करना, शाही मावा सेंटर में उसका नंबर भी दे सकता हूँ। वो कुछ देवबंदी मशहूर है, मेवाती हैं, वहाँ से चंदा लेके आया कैलेंडर का, उनका नाम छपवाया, बाद में क्या कहते हैं हमें मालूम नहीं। अच्छा, ये अच्छा तरीका है इन लोग का, कुछ हो गया तो मालूम नहीं है। जामे घर पढ़ के आते हैं, फिर क्या कहेंगे, अब जामे घर की पोल खुल जाएगी ना पूरी तरह से कि देवबंदी है, तो कहेंगे भाई हमें नहीं मालूम था कि पक्के देवबंदी, अब हम नहीं पढ़ने जाएंगे वहाँ पर। अभी क्या है कि इंडिया वाले जा नहीं पा रहे ना, हर आदमी नहीं जा पा रहा वहाँ पर घूमने के हिसाब से, नहीं जा सकते। अगर जिस दिन इंडिया के लोग चले गए ना, ये प्लानिंग बना के आ रहा है काजी जो कह रहा है सही, एक आध बार अपन चले तो सही, कोई ज्यादा पैसा तो लगे नहीं, वीजा बनी जाएगा जाने घर का। जिस दिन इंदौर के चले गए ना 10 लोग, उज्जैन के, कोटा के, उदयपुर के, चित्तौड़ के, नासिक के, पोरबंदर, बम्बई के, तो उस दिन कहेंगे अतर हुसैन काजी तुझसे हम मिलना चाहते हैं, तूने वाकई आंखें खोल दी, हम जामे अगर 1 महीना लेके आए, एक एक बात हमें मालूम हो गई। तो फिर मेरे दीवाने हो जाएंगे, कहेंगे सही कहता था यार तू, जामे अगर तो टोटल देवबंदी जैसा है। वो तो कह देंगे जो अकायद ये बताते हैं बिल्कुल वो अकायद उनके नहीं, वो तो सिर्फ से मना करते हैं ये नहीं हमारा अकायद जो ये बरेली नहीं चुनते हैं, और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को उस तरह से मानते नहीं जैसे ये लोग मानते हैं। हाँ, जैसे याकूब मदद कभी मानते तो है, लेकिन याकूब मदद नहीं, और न वो फतावा हुसाम हरमैन को मानते, किसी को भी नहीं मानते ये लोग। फतावा वो अपने ही मन से ये लोग कर लिए हैं। जो इनके अकायद है ना, हुजूर को हाजिर नाजिर जिस तरह से मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते, वो बिल्कुल नहीं मानते, जामेदार वाले वो भी नहीं मानते। एग्जैक्टली, हाँ, नहीं मानते। तो वो मेरी बात, मैं तो 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ इस बात को, कि अगर कोई मुरादाबाद से, इंदौर से, उज्जैन से, रतलाम से, उदयपुर से, चित्तौड़ से, कोटा से, बम्बई से, सूरत से, नासिक से, अहमदाबाद से अगर चला जाए और इस बात की तहकीक कर जाए कि वाकई वो वहाँ पर कैसे लोग हैं, सच्चाई बताओ, हम तो 2 लाख देंगे, मगर इसी नीयत से जाओगे जब देंगे 2 लाख।